तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में A2 अकाउंटिंग का टॉपिक के अंदर ये आता है आपका IAS का। इसमें अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच कम्स इन द ईयर मई जून 1732 का ये क्वेश्चन है और कहते हैं जी कि Lushan and Sampson are directors of Z Limited was newly formed on 1st January 2016. They understand that they are legally obliged to prepare financial statements in accordance with IAS. State 4 reason why the business should comply with IAS standards when financial statements are being prepared. क्या होता है? To bring harmony in the accounts, to bring understandability in the accounts so that the people can see the accounts and understand them easily. ठीक है, so that they can become more reliable, so that the accounts can become relevant with the accounting records, with the information given by the accounting record, they should be relevant. So these are the things which matters. Understand to bring harmony in the accounts for decision making, understandability, to make comparison with other businesses, comparability, understandability, reliability और relevance. ये चीजें होती हैं जरूरी हैं जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स होते हैं. Explain what is meant by stewardship with regard to the role of directors. Stewardship directors are basically those people who are engaged in the management of the company. They are appointed by the shareholders and their task is to manage all the affairs of the company, right? And this is known as stewardship, as the steward is basically who drives the ship in the sea. So directors are basically the drivers of the company who participate in managing the affairs of the company. Additional information में क्या लिखा हुआ है? Directors prepared the following draft statement of financial position. Non-current assets दिए हुए हैं आपको, property, plant and equipment current assets हैं, equity and liabilities आपको दी हुई हैं, current liabilities हैं. Julia is the auditor of Z Limited. During her audit, she was provided with the following information. G. Sir, managing the stewardship क्या managing directors का कहते हैं? Complete करवा दो statement. Stewardship is basically relates to the directors, as director is responsible to steward the ship in the sea. Same is the case. The directors are responsible for managing all the affairs of the company. They are appointed by the directors or they are appointed by the shareholders. Okay, sir. So on 31st December 2016, Z Limited had been sued for an amount of 29,000. Legal advice indicated that Z Limited has a 90% chance of losing the case. If you have gone through my lectures, this particular point deals with the IAS 37. Now, IAS 37 says that if there is a chance of a liability, more than 50% chance of occurring a liability has been created, then you will record it as provision. And provision is a current liability. So provision is created for compensation of this sue which is against us. तो ये retained earning में से हम 29,000 डेटा माइनस कर देंगे और वो provision for compensation के नाम से current liability में भी रिकॉर्ड किया जाएगा. फिर कहता है जी, include in the trade receivable was a debt of 30,000 owed by P Limited which was in financial difficulty. The director of Z Limited had accepted office equipment from P Limited on 31st December 2016 to settle 70% of P Limited debts. They were of the opinion that the recovery of the remaining debt was highly improbable. कि recovery जो debt की है वो improbable है, यानी कि वो उसके chances बहुत कम है. यानी कि जब improbable है उसका मतलब है कि उसके chances तकरीबन ना होने के बराबर हैं. उसके लिए आपको definitely provision जो है वो create करनी पड़ती है. तो trade receivable में एक debt include था 30,000 का. ठीक है जी. उसमें से हमने director of Z Limited has accepted office equipment from P Limited on 31st December to settle 70% of P Limited debt. तो हमने office equipment ले लिया उससे. तो office equipment में बेटा हम ऐड कर देंगे 21,000, 30,000 का 70% और trade receivable में से 21,000 माइनस कर देंगे. 9,000 तो वैसे ही खत्म हो गया ना, वो तो bad debts हो गए, वो तो खत्म हो गया आपका, वो तो माइनस कर देंगे. आप retained earning में से भी लॉस भी है और trade receivable में से भी माइनस हो जाएंगे. लेकिन 21,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे मजीद, क्योंकि वो इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे हम. बाकी रिटेन अर्निंग में से माइनस होना है
और ट्रेड रिसीवेबल में से 9,000 भी माइनस होना है, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में 30,000 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ट्रेड रिसीवेबल जब 30,000 इंक्लूड है, जब हम ट्रेड रिसीवेबल में से 21,000 माइनस कर देंगे, उसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली हमने 21,000 एक्सेप्ट कर लिए हैं, हमारे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर गए हैं अपने से, क्योंकि हमें उतनी अमाउंट का क्या मिल गया है, पी लिमिटेड से डेट मिल गया हमें, और लेफ्ट क्या ऑफिस इक्विपमेंट हमने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है जी। Therefore, of the opinion that recovery of remaining debt for highly improbable. Remaining debt जो है वो हमें मिलने के चांसेस जो है वो improbable का मतलब है कि यानी कि वो हमें नहीं मिल सकते, नहीं मिलने वाले। फिर कहता है piece of machinery had been purchased on 1st January 2016 for 50,000. The machinery had been depreciated at an annual rate of 20% by using straight line method. It had an estimated fair value of 32,500 and estimated value in use of 19,500. इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये IS 36 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट क्या होती है? द रिडक्शन, द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय विच द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। अगर आप गौर करें तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज किससे ज्यादा, यानी 32,500 आपका है, और 50,000 आपकी कैरिंग अमाउंट है, तो आपको कैरिंग अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कितने से? 17,500 से। बल्कि क्या कहना चाहिए, डेप्रिशिएट भी हो रहा है 20%। तो 50,000 में से आप डेप्रिशिएशन पहले माइनस करेंगे 20%, क्योंकि साल का एंड है ना। 10,000 माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस 32,500, दैट इज विल बी योर इम्पेयरमेंट, और वो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगी और आपकी एसेट में से भी माइनस हो जाएगी। 50,000 पे 20% निकालेंगे तो डेप्रिशिएशन आएगी ना। क्या क्या 40,000, इसमें से 32,500 माइनस कर देंगे आप, 7,500, दैट इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। ये आप माइनस कर देंगे रिटेन अर्निंग में से भी, रिटेन अर्निंग में से भी माइनस कर देंगे हम, और साथ में आप जो है वो इसी को माइनस कर देंगे नॉन करंट एसेट में से। बैलेंस शीट कहता है कि आपने बनानी है दोबारा, तो बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। कैसे डेवलप करेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन हम डेवलप कर रहे हैं जी। आपका आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या दी है आपको? बैलेंस शीट बनानी है ना, आपने तो वहीं से देख के बनानी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,78,000 लिख लूंगा जी। ये आपका है जी 4,78,000। इसमें से हम क्या कर देंगे जी, एक तो इसमें से हम प्लस कर देंगे 21,000, 30,000 का 70%, वो मिल गया ना आपको उसमें। आपने इक्विपमेंट परचेज कर लिया, इक्विपमेंट कर लिया, और माइनस कर देंगे इसमें से हम 7,500, जो कि आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगी। आपका एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई, इतने से इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होगी। ये आपका आ जाएगा जी 4,91,500। बनना हो जाए चार्जिंग। अच्छा, इसके बाद आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं हमें कितने की दी हुई है जी, 1,24,000 की दी हुई है, एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। देता हूँ आपको, इन्वेंट्री है 1,24,000 की, ट्रेड रिसीवेबल है 2,17,000 के।
इसमें पहले हम माइनस कर देंगे जो आप ट्रेड रिसीवेबल आपके खत्म हो गए हैं, कौन से वाले 21,000 के, फिर माइनस कर देंगे जो आपने प्रोविजन क्रिएट की है 9,000 की, प्रोविजन कह लें या जो आप वेंडर्स कंसीडर कर लें, प्रोविजन है बेसिकली तो आपकी, वो माइनस कर देंगे आप, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल का आंसर जो है वो निकल जाएगा। कितना निकल रहा है मैं देख लूँ, 2,17,000 माइनस 21,000 माइनस 9,000, 1,87,000 आपका जो है ये आ जाएगा। उसके बाद बारी आपकी आ जाती है जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, कोई चेंज नहीं आ रहा। सर ये प्रोविजन वाला पॉइंट तो जरा समझा दें, ये जो आपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस किया 9,000। जी मैं बताता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके हैं 1,32,000 के, ये मैं जरा कंप्लीट करके मैं भी करने इसका, ये आपका आ जाएगा 4,43,000 और टोटल एसेट्स जो है वो निकल आएंगे 9,34,500। तो देखिए वापस चलें, कहता है कि पॉइंट नंबर 2 में इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल डेट ऑफ 30,000 ओड बाय पी लिमिटेड which was in financial difficulty, director Z Limited accepted office equipment. ऑफिस इक्विपमेंट हमने एक्सेप्ट कर लिया 70% ऑफ द डेट, 21,000 ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल में से 21,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने 21,000 एक्सेप्ट कर लिए, हम उसके बदले ऑफिस इक्विपमेंट ले रहे हैं। बाकी कहता है बाकी जो डेट है, they were of the opinion that the recovery of the remaining debt was highly improbable, उसके रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत कम है। इम्प्रॉबेबल का मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है, तो उसके लिए हम क्या क्रिएट कर लेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि बैड डेट्स तो कंसीडर नहीं कर सकते ना, हाईली इम्प्रोबेबल तो है लेकिन मर तो नहीं गए ना, अगर बैड डेट्स भी कंसीडर कर लें इम्पैक्ट वही आएगा आपका फिर भी, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे एज ए लॉस जब प्रोविजन आप इंक्रीज करेंगे, और 9,000 आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के तौर पर ट्रेड रिसीवेबल में से मजीद माइनस कर देंगे। सही है? जी सर आगे सर। अब इधर आपका आ जाएगा जी इक्विटी जो आपकी होती है उसको हम ऑर्डर कर लेंगे, उसमें आपका आता है जी पहले शेयर कैपिटल आ जाएगा 5 लाख का है, फिर आपकी आ जाएंगी जी रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको कितने की दी हुई है हम देखते हैं, 2,10,000 की दी हुई है, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 9,000 जो प्रीमियम बनाई है मैंने, माइनस कर दूंगा 7,500 जो आपने लॉस क्रिएट किया है, कौन से वाला इम्पेयरमेंट लॉस जो आपका है वो आप माइनस कर देंगे, और जो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन आप बनानी है, आपने लाइबिलिटी क्रिएट करनी है पॉइंट नंबर 1 की, वो माइनस कर देंगे 29,000। कैसे सर, ये देखिए ना, पहला जो पॉइंट है ना वो कह रहा है जेड लिमिटेड सू किया उसने 29,000 का, लीगल एडवाइस आपको ये मिल रही है कि 90% चांस है कि आप केस लूज कर जाएंगे, तो आप उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। 50% से ज्यादा चांस हो अगर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होने का तो आप प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अगर 50% से कम चांस हो, मैंने थ्योरी में बताया हुआ है आपको उसके अंदर अच्छे तरीके से, तो हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बना लेते हैं उसको, ठीक है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसके अकरेंस डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, फिर हम उसको क्या बना लेते हैं, और जिसकी अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली तो हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। ये आपकी आ जाएगी जी 164500, इसका टोटल कर लेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 664500। करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं, उसमें आपको पता है प्रोविजन फॉर कंपनसेशन आपने लिखनी है एज ए करंट लायबिलिटी, बाकी तकरीबन वही चीजें आएंगी। ट्रेड पेबल आपकी आ जाएंगी, ओवरड्राफ्ट है नहीं,
compensation. और आपका टैक्सेशन लेते हैं। ट्रेड पेबल्स आपको दिए हैं कितने के 1,88,000 की 53,000 का टैक्स है। आप क्या लेंगे 1,88,000। कंपनसेशन आपकी 29,000 की परवीन आपने क्रिएट की है और टैक्स आता है 53,000 का। टोटल कर लेंगे हम, आपका बैलेंस शीट का टोटल जो है वो निकल आएगा। आपको याद रखना है कि आपके टोटल दोनों बराबर होने चाहिए, तब आपको कोई गलती की भी हो आपने ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस शीट का अगर सवाल आता है ना तो गलती आपने की हो तो आप उसको थोड़ा बहुत किसी हद तक पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए, तो वो अमाउंट का डिफरेंस निकाल के आप देख लेंगे कौन सी अमाउंट से आपका कितना फर्क आ रहा है, तो कोई बेनिफिट आपको उसका किसी हद तक हो जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं और मजीद अगले क्वेश्चन है उसको हम जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा कौन सा इसमें आ रहा है, 31 है। ये क्वेश्चन है जी हमारा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ जी हुई आईएएस का मई जून 1831 का। सवाल आपके सामने है। प्लांट एंड मशीनरी दिया है, ह्यूमन एसेट सी नोट 1, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश कैश इक्विवेलेंट है, ऑर्डिनरी शेयर रिटेन विद प्रॉफिट है, ट्रेड पेबल अदर पेबल दिए हुए। During the course of the year end audit, the external auditor obtained the following information from the directors note 1 to 3. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने आपको ऑडिटिंग का पूरा लेक्चर जो है वो भेज दी है, उससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर है उसको याद कर लें। फिर भी ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन by the auditor who has been appointed by the shareholders in the annual general meeting and who is responsible to give his independent opinion on the financial statement of the business, that either the financial statements are showing true and fair view of the business after reasonable assurance and after obtaining objective evidence that there is no material misstatement in the financial statements. Then if there is no material misstatement in the financial statement, he will give an unqualified opinion. And if there is material misstatement in the financial statement, he will give qualified opinion. बेटा जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये आप लिख देंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपको नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स हैं ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के। ऑडिटिंग आप लोगों ने पढ़ी थोड़ी हुई, मैंने तो पढ़ी भी है। तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैंने ये वर्ड यूज किए होंगे लेक्चर के अंदर भी, तो ये वर्ड यूज करना ही आपके 2 लाइनें भी सिर्फ नंबर मिल जाएंगे आपको। एक्सटर्नल ऑडिटर का रोल्स क्या होता है? क्या होता है? इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना। क्या करने के बाद? आफ्टर रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करने के बाद। कैसे? ऑब्जेक्टिव एविडेंस अटेन करने के बाद। क्या बताना है? ये सब करने के बाद वो क्या बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं। कैसे? क्योंकि उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अगर होगी तो क्वालिफाइड ओपिनियन, नहीं होगी तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ये है जी। एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आइटम नंबर नोट 1 and 2। उसको देखते हैं हम। During the year K Limited paid a deposit of 70,000। कुछ टेक्निकल वर्ड मैंने यूज किए हैं वो याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट ओपिनियन की बात मैंने की, रीजनेबल एश्योरेंस की बात मैंने की, ऑब्जेक्टिव एविडेंस की बात मैंने की, बल्कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं ऑडिट एविडेंस कह दें आप, ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और फिर मैंने क्या बात की? ट्रू एंड फेयर व्यू की बात मैंने की, और फिर मैंने बात की मटेरियल मिस स्टेटमेंट की। During the year, K Limited paid a deposit of 70,000 for a 6 month training program commencing on 1st November। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कमेंस हो रहा है ना बेटा, अगर आप गौर करें तो 1 नवंबर को कमेंस हो रहा है। हमारा साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो सिर्फ 2 माह का जो नवंबर और दिसंबर है वो हमारे एक्सपेंस बनता है। बाकी जो 4 महीने की है वो तुम्हारा एक्सपेंस है ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 2 माह का है वो हमारा एक्सपेंस में ट्रीट किया जाएगा। बाकी 4 महीने का जो है वो प्रीपेड है। The balance of 50,000 will be paid on completion of the program. This has been included in other payable। Other payable में आपको ये बैलेंस शामिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर believed that the training would benefit the company for 5 years। डायरेक्टर ये कहते हैं कि ट्रेनिंग 5 साल तक फायदा पहुंचाएगी। Total payment was regarded as an intangible asset and recorded as a human asset। Amortization of 4,000 have been provided।
आपने उसको ह्यूमन एसेट में लिखा हुआ है, इधर 1 लाख की ह्यूमन एसेट 1,16,000 लिखा हुआ है, तो 1,20,000 की अमाउंट आपने डायरेक्टली नॉन करंट एसेट में शामिल कर दी है, विच इज नॉट ए नॉन करंट एसेट, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए नॉन करंट एसेट। हम उसे ट्रीट नहीं करते नॉन करंट एसेट्स को, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग की एग्जैक्ट मनी वैल्यू का आइडिया लगाना मुमकिन नहीं है। दूसरा, हाउ मच इट इज गोइंग टू बेनिफिट इन द फ्यूचर ईयर्स, यू कैन प्रेडिक्ट दैट आल्सो। ये आप नॉन करंट एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, ओवर द लाइफ ऑफ द बिजनेस को डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द 2 months एंड द नेक्स्ट फॉर 4 months इट विल बी ट्रीटेड एज ए करंट एसेट बिकॉज इट्स ए प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है जी। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को मेजर करना मुमकिन नहीं है, उस पर कितनी अमाउंट स्पेंड हो रही है और कितनी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या ट्रेनिंग प्रोग्राम से कितना इंपैक्ट आएगा, लिहाजा हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें से जो आपका 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, टोटल अमाउंट 6 बनती है ना, 70,000 और 50,000, टोटल एक्सपेंस आपका 1,20,000 है, उसको डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो आपका 1 महीने का आ जाएगा 20,000। तो 40,000 जो आप है वो आप अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। और बाकी जो है 30,000 जो है वो आप प्री पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जो आप पे कर चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 50,000 तो आपने भी पे किया ही नहीं ना, लेकिन एक्सपेंस तो आपका हो गया है 2 माह का, वो 1,20,000 के हिसाब से 2 माह का है ना, 70,000 और इस 6 month ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने पे कर दिया और बैलेंस 1,50,000 भी है। टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का आपका बनेगा बेटा वो 1,20,000 का बनेगा ना, उसमें से 6 महीने का है, डिवाइड बाय 6 करेंगे, 2 महीने का इस हम इस्तेमाल कर चुके हैं, 2 महीने का आपका 40,000 का एक्सपेंस हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसमें से सिर्फ 70,000 पे किया अभी तक, माइनस 40,000, 30,000 जो है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा, और अदर पेबल में कुछ भी नहीं आना, तो वो तो मैं भी पे किया ही नहीं आपने, तो आप उसको 50,000 पेबल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नॉन करंट एसेट थोड़ी है आपका, अदर पेबल में आपसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम पे बात की जाएगी, क्योंकि वो हमारे इस साल का एक्सपेंस ना तो है ना ही वो पेबल है, क्योंकि वो हम इस साल के जो 2 महीने बनते हैं, जो इस साल के 2 months बनते हैं, वो तो हम पे कर चुके हैं, बट उससे ज्यादा पे कर चुके हैं, तो इस तरीके से हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जिसने अमोर्टाइजेशन लिखी हुई 4,000 की, वो आपको एड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अमोर्टाइजेशन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड आप करेंगे। देखें हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, 98,000, रिटेन अर्निंग्स कितनी दी हुई है, 2,15,000। उसने क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर को आपने करेक्ट करना है, क्वेश्चन में कहा हुआ है बेसिकली। मैं 98,000 से स्टार्ट करूंगा इसको, इसमें मैं ऐड कर दूंगा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन तो नॉन करंट एसेट होती है ना बेटा, ओवरचार्ज्ड, जो आपने ज्यादा चार्ज कर दी है वो आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। वो कितनी है 4,000, वो माइनस कर दी है ना आपने बेटा, जब माइनस की होगी तो डेबिशन में भी तो रिकॉर्ड किया होगा ना उसको। अमोर्टाइजेशन क्या होती है, अमोर्टाइजेशन होती है इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। IAS 38 ये कहता है कि इनटेंजिबल एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, दे आर नॉट डेप्रिशिएटेड, दे आर अमोर्टाइज्ड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years। नॉर्मल यूजफुल लाइफ क्या होती है, 20 years होती है। इस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को भी, अगर उसका फ्यूचर बेनिफिट आपको नजर आ रहा है तो उसको आप नॉन करंट एसेट ट्रीट करते हैं, अदरवाइज उसे भी एक्सपेंस ट्रीट करते हैं नॉर्मली, अनलेस के इट इज नॉट, research and development will not is not going to be transformed into a non-current asset, or it is not incurred for the purchase of a non-current asset or a building, तब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को नॉन करंट एसेट ट्रीट नहीं करते। अमोर्टाइजेशन चार्ज हमने ऐड कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं
कि इसमें से जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था वो आपने माइनस नहीं किया हुआ, लेस करते हैं कि इसमें से ट्रेनिंग एक्सपेंस कितने का, 30,000 का, जो कि आपको मैंने बताया है प्रीपेड एक्सपेंस है ना, वो आपने माइनस नहीं किया हुआ इसके अंदर से, आपने तो सारा सारा एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था ना, 70,000 का आपने माइनस कर दिया है। तो ट्रेनिंग एक्सपेंस किया वो हम 40,000 का माइनस कर देंगे इसमें से, कहीं मैंने 30,000 दे दी है, 40,000 का माइनस कर देंगे, जो कि आपका एक्सपेंस लिखा होना चाहिए। देखिए ना, उसने तो नॉन करंट से ट्रीट किया हुआ सारे का सारा, एक्सपेंस ट्रीट किया ही नहीं हुआ, 40,000 आपने एक्सपेंस ट्रीट किया है, उसके अंदर जो हमारा एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वो हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि आपने पे कर दिया, वैसे प्रीपेड एक्सपेंस में भी आएगा, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं करना आपने। ट्रेनिंग एक्सपेंस आपने 40,000 माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि 1,20,000 में से 6 मंथ्स आपका एक्सपेंस है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट और एन एसेट, तो वो हम एक्सपेंसेस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे इन्वेंट्री वो कह रहे हैं ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, दीज हैड बीन इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 12,000, this could only be sold at half of the normal selling price which was 25% above cost। बेटा 12,000 का 25% निकालेंगे आप, आपका आ जाएगा 3,000, वो इसमें ऐड कर देंगे, 15,000 जो है वो आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, अभी वो कितने का बिकते हैं, 7,500 का, हाफ ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, उसका मतलब है 4,500 का आपका इन्वेंट्री का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री आपका हो रहा है 4,500 का, जो कि यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर देंगे। दोबारा भी समझा देता हूँ, इन्वेंट्री, बच्चे ने मुझसे सवाल किया बेटा वो प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने की जरूरत नहीं है एक्सपेंसेस में से, क्योंकि वो माइनस हमने वो माइनस करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो आप एसेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो आपने करनी है। ऐसा एक्सपेंस जो प्रीपेड था जो हमने माइनस नहीं किया, वो प्रीपेड में लिखे जाने चाहिए थे डायरेक्टली, यानी उसकी एंट्री करनी थी प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, उसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो 12,000 का मैंने निकाला पहले, 25% वो आया 3,000, वो ऐड किया, 15,000 रुपया नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, 15,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन हम कितने का सेल कर रहे हैं इसको, 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे अब ये सेल होता है, 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल होता है, 7,500 आपका आ जाएगा, और आपने कितने में लिखा है, 12,000 पे, 4,500 आप ज्यादा शो कर रहे हैं, आपको उससे अपनी इन्वेंट्री को जो ऑब्सोलीट हो चुकी है लॉस ऑफ इन्वेंट्री के नाम से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज़ इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से कम होती है, उस पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखते हैं जी, ऑन 1 जुलाई के लिमिटेड पेड 60,000 फॉर accruing the right to use computer software for these years, the full amount has been charged as an expense in the income statement। सारी अमाउंट तो एक्सपेंस में चार्ज नहीं होगी ना, ये नॉन करंट एसेट है, और ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट राइट टू यूज, कॉपी राइट्स है ना, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट आपने इसको इस्तेमाल करना है, 3 सालों का है, तो इस साल का एक्सपेंस कितना आएगा आपका बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करें 20,000 आता है इस साल का एक्सपेंस, 60,000 में से 1 जुलाई 2017 की बात कर रहे हैं, तो उसमें से हमारा जो आएगा, हमने क्या रिकॉर्ड किया है, हमने सारा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया, सारे का सारा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया आपने। तो रिकॉर्ड कितना करना था इनकम स्टेटमेंट में, आपने रिकॉर्ड करना था 10,000 एक्सपेंस आना था इनकम स्टेटमेंट में। सर नहीं समझ आई इसकी, देखिए मैं बता रहा हूँ, 60,000 का आपका आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया वो एक्सपेंस, जबकि आपने इसको डिवाइड बाय 3 करना था, तो एक साल का एक्सपेंस बना था 20,000, और क्योंकि हमने 1 जुलाई को लिया तो इस साल का एक्सपेंस बना था 6/12 यानी 10,000। आपने सारे का सारा रिकॉर्ड कर लिया एज एन एक्सपेंस 60,000, तो आपको 50,000 क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, जो आपने गलती से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, ऐड करना पड़ेगा आपको, जो लाइसेंस फी फॉर द ईयर आपने रिकॉर्ड कर ली है ज्यादा, से 50,000 से 60,000 माइनस कर दिया आपने, जबकि आपने माइनस करना था कितना, सिर्फ 10,000, तो आपको 50,000 ऐड बैक करना पड़ेगा।
ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा निकल आएगा 107500। ये मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो फाइंड करके अंडरस्टैंड योर पॉइंट। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, इसमें शक वाली बात नहीं है, लेकिन क्या करें, इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जिस हद तक भी आप इसको सही कैलकुलेट कर सकते हैं उस हद तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो सही आ सके। तो प्रॉब्लम है तो मुझे पूछें ताकि मैं इससे आगे चलूँ। सर इस क्वेश्चन का ईयर बता दें। ये क्वेश्चन आपका आया है मई जून 1831 में। ओके सर। अच्छा जी, क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ, आगे कहता है जी स्टेट द वैल्यू एट विच द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस को आप फाइनेंशियल पोजीशन में किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे 50,000 पे। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो बाकी डेप्रिशिएट हो गया ना, 50,000 उनका हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर इन्वेंट्री कितने की आपकी आ जाएगी बेटा? इन्वेंट्री आप करेंगे, इन्वेंट्री का लॉस हो रहा है ना 4500 का, इन्वेंट्री में से 4500 माइनस करके आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री जो है वो आपको दी हुई है कितने की? 146,000 की। माइनस कर देंगे इसमें से, इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 141500। इस तरह रिटेन्ड अर्निंग्स का भी करेक्ट उसने वैल्यू पूछी हम हमसे, करेक्ट वैल्यू बताएं। रिटेन्ड अर्निंग्स में जाहिर बात है आपको पता है कि जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा वो सारा रिटेन्ड अर्निंग्स पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो जाना है। प्रॉफिट हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स हमें दी हुई है जी कितने की? 2,15,000 की। उसमें हम प्लस कर देंगे 107500, ऊपर प्रॉफिट निकला वो ऐड कर देंगे ना, क्लोजिंग आपका आ जाएगा 3222500। ये आपका आ जाएगा। और क्या पूछा उसने रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद? पेबल्स। पेबल में देखें वो जो हमने क्या बनाया था, पेबल्स कितने के दिए हैं जी? 75,000 के दिए हुए थे पेबल्स। ठीक है जी। उसने उसमें हमारा जो ये के लिमिटेड पेड 60,000 फॉर राइट टू यूज टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, 60,000 का। अच्छा पे कर दिया ना आपने, पेबल आपके आ जाएंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। $75,000 ट्रेनिंग कॉस्ट थी आपकी, 50,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी 25,000। ये कैसे आपको? ये 50,000 विल बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर पेबल। अदर पेबल में आने ही नहीं होता, गलत डाले में ना आपने, तो अदर पेबल में वो आप बनते ही नहीं जब तक हम पे ना करें। इट्स नॉट ए लायबिलिटी, वो हम माइनस कर देंगे अदर पेबल में से। तो ये हमने क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। टेक्निकल क्वेश्चन होता है, ये मुश्किल क्वेश्चन होता है, इसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है। अदर पेबल क्यों माइनस हुए हैं? वो जो हमने 50,000 की ट्रेनिंग अदर पेबल में शामिल की हुई थी उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से। मई जून 1831 का जो है सवाल है आगे की। जी जी सर इसमें जो आप ये पॉइंट 1 है, इसकी पूरी जो ट्रीटमेंट होगी वो ये होगी कि मतलब हम इसको पूरा 120,000 को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और इसको एसेट नहीं ट्रीट करेंगे, हाँ हाँ ऐसे ही ऐसे ही। ना लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि 120,000 एक्सपेंस है हमारा, लेकिन एक्सपेंस हमारा इस साल का तो 2 महीने का बनता है ना, इस साल का तो आप सिर्फ 2 मंथ्स का लेंगे।
आगे कहता है K Limited additional needs additional computer software. The director are considering whether to buy the computer software or require the right to use the new software for 3 years. तो right to use software खरीदने का करें या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर लें, परचेज कर लें. ठीक है जी. Explain whether the director should buy the computer software or acquire the right to use it for 3 years. Justify your answer. कहता है कि सॉफ्टवेयर आप कहता है परचेज करना है आपने, या आप जो है उसको क्या करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं. तो देखिए अगर आप परचेज करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो इट विल बी नॉन करंट एसेट फॉर यू एंड heavy amount will go out for the purchase of the computer software, because only hiring cost, if you hire it, that cost will be 60,000 for each year. But because computer software will become, with the passage of time, it will become of no use, because software जो होते हैं उनकी वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज करती है या गिरती है. तो राइट टू यूज करना ही हमारे लिए बेहतर होगा. क्यों? क्योंकि राइट टू यूज के अंदर आप उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, acquire कर रहे हैं right to use, और for 3 years that would be more feasible for us. ठीक है, because the computer software are going to technological advancement की वजह से चेंज हो सकते हैं. तो आपको दोबारा राइट एक्वायर करना पड़ेगा. अगर आप परचेज करते हैं तो आपको बार बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ेंगे, विच में बी मोर कॉस्टली फॉर अस. तो राइट टू यूज जो है वो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है, बिकॉज विल पे अ लेसर अमाउंट which will be depreciate over the years though. लेकिन परचेज अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करते हैं तो आपको दोबारा परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो आपका चेंज होता रहेगा. हम इसका आंसर जो है वैसे सॉल्व करेंगे. आगे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने, सॉरी ये नहीं है, इससे पूछिए है, जो चाहूंगा मैं कि आप इसको सॉल्व करें खुद. ये सवाल है कि हमारा ये आया हुआ है आपका अक्टूबर नवंबर 1633 में, अक्टूबर नवंबर 1633 में हमारा ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है. और ये भी आपने करना है अक्टूबर नवंबर 1142 का सवाल है. बहुत आसान है. अक्टूबर नवंबर 1122 1142 मेरी बुक में है. 1142 का सवाल है. और एक मैंने आपको बताया कि ये जो अगला है 16 अक्टूबर नवंबर 1633. ये क्या कहता है जी? X Limited has been trading for many years. Before the end of the year, audit chairman made the following statement: I am pleased to report that profit for the year has increased from 86 to 174,000. These results have been achieved through careful cost control and concentrating on these areas which offer the greatest return. However, during the year, the auditor ने discovered कि equipment with a net book value of 182 has become obsolete during the year but had not been written off. ये आपके प्रॉफिट को कम कर देगा 1,80,000 से. It's a dead loss. The director believed that the building has increased in value by 2 लाख, और 2 लाख से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर दी है. उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा आपका, प्रॉफिट से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. विच कैंसल आउट एनी लॉस ऑन द ऑब्सोलीट इक्विपमेंट. तो ठीक है, अगर ऑब्सोलीट इक्विपमेंट जाया हो रहा है तो वो जो 2 लाख है वो उसके लॉस को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा. सो नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड. कोई एडजस्टमेंट हमने मेड नहीं की इसके हवाले से. तो वैल्यू जो इंक्रीज कर रही है रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपए का, तो इक्विपमेंट की वैल्यू जो डिक्रीज कर रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया जाता है, लेकिन बाकी जो 20,000 का लॉस है वो तो रिटेन अर्निंग में से माइनस करना था ना आपने 20,000 का, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली बात. और इन्वेंट्री कहते हैं जी हैज बीन चेंज्ड एट द एंड ऑफ ईयर फ्रॉम एफको टू फाइफो. एफको वैल्यूएशन हैज बीन 1,42,000 whereas the FIFO valuation was 184,000. ठीक है जी. At 31st March, the trade receivable amounted to 66,75,000. During the year, a debt 81,000 had been written off. तो ये माइनस कर देंगे, एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा आपका. Check for 75,000 of this amount had been discovered during the audit. कि वो मिल गया आपको 75% मिल गया, बाकी bad debts हुए रिमेनिंग जो होंगे. This check had not been recorded in the books of account but expected to clear the bank. ये चेक भी हमने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ. Explain the term stewardship. Explain the purpose of an end of year audit. Explain whether the published audit report will be qualified or not. ठीक है जी, it will be unqualified report होगी, क्योंकि मटेरियल में स्टेटमेंट्स नजर आ रही है ना, आपने चीजों को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड
नहीं किया हुआ. डिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वो मैंने आपको बता दी है कि जो पॉइंट नंबर 3 है 31 मार्च 2016 को कह रहा है. हमारा साल कब खत्म हो रहा है? जी, ये एडजस्टिंग इवेंट है आपका. IAS 10 कहता है कि जो नंबर 3 पॉइंट है ये एडजस्टिंग इवेंट है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. IAS 2 जो है वो बताता है कि FIFO और FCO में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे. जो भी मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं, आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए फ्रॉम FCO टू FIFO. FCO वैल्यूएशन 142,000 जी, FIFO वैल्यूएशन 184,000. इससे क्या होगा, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, प्रॉफिट आपका ओवरसेट हो जाएगा. यू विल हैव टू पे मोर टैक्स क्योंकि प्रॉफिट आपका ज्यादा आएगा. लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं FCO मेथड यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर देता है, वो इवन आउट कर देता है आपकी, बिकॉज एवरेज आउट कर देता है. एक ही रेट यूज करते हैं ना उसके अंदर हम. तो अगर फ्लक्चुएशन है, सीजन फ्लक्चुएशन है रेट के अंदर बहुत ज्यादा, तो फिर हम जो है ना वो इवन आउट कर देता है, एवरेज आउट कर देता है FCO मेथड आपका. Assess the effect of any correction of the profit for the year उसने बताया है, और assess the implication of a qualified audit report. तो ये आपने घर में देखना है क्वेश्चन. सर पॉइंट 1 का ट्रीटमेंट फिर बताते हैं. पॉइंट 1 में मैंने बताया था इक्विपमेंट विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 1,80,000 हैज बिकम ऑब्सलीट ड्यूरिंग द ईयर. तो ये तो आपका लॉस हो गया 1,80,000 का सीधा सीधा. अब वो लॉस 1,80,000 प्रॉफिट में से माइनस होगा, लेकिन 20,000 जो है आपका 20,000 चल गया जी. 1,80,000 आपका लॉस हो गया, लेकिन वो कह रहा है डायरेक्टर बिलीव दैट बिल्डिंग हैज इंक्रीज्ड इन वैल्यू बाय 2 लाख व्हिच कैंसल आउट एनी लॉस ऑन द ऑब्सोल्यूट इक्विपमेंट. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है, उसका 1,80,000 जो लॉस हुआ है उससे कंसर्न नहीं है. तो वो पैसा रिवैल्यूएशन रिजर्व में से हम माइनस कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं, निकाल लेंगे लॉस के तौर पे. इक्विपमेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा जो इंक्रीज हो रहा है 1,80,000 से. लेकिन जो 20,000 का लॉस है वो तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना अभी भी. तो 20,000 का आपको रिटेन अर्निंग में से, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा एज ए लॉस. सर 20,000 का कौन सा लॉस है? 20,000 कह रहा हूँ, सॉरी. ठीक कह रहे हो आप, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो इंक्रीज कर रहा है ना 2 लाख से, तो 20 कोई लॉस भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप. उसके डिस्काउंट आपने मेड नहीं की ना, 1,80,000 लॉस जो है वो आपका पूरा हो जाएगा. इक्विपमेंट आप माइनस कर देंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आपको लॉस पूरा करेंगे. तो 2 लाख का आपका इंक्रीज किया. ठीक ठीक कह रहे हैं, यही रिकॉर्ड करेंगे. प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, दोनों बाकी नीचे वालों का इम्पैक्ट आएगा जहां से FIFO मेथड से बढ़ रहा है वैल्यू. क्योंकि जब इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, FIFO में कन्वर्ट करेंगे, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से इंक्रीज करने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो जाएगी क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है ना आपकी इन्वेंट्री की. सर ये पॉइंट 2 तो हमारे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के खिलाफ. जी जी बिल्कुल, वो आप बता सकते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, ये भी कह सकते हैं. लेकिन उसने कहा है ना डिस्क्राइब द एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एनी करेक्शन ऑफ द प्रॉफिट. जब आपने की है तो प्रॉफिट को करेक्ट तो आपने करना है ना. मैं भी यही कह रहा हूँ ना, आप तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को FIFO में रिकॉर्ड कर चुके हो, ज्यादा कर ली है ना आपने. had been 1 lakh whereas the FIFO valuation was 184,000 had been changed at the end of year from FCO to FIFO. आपने चेंज कर दिया वैल्यूएशन को, तो ट्रीटमेंट तो करेक्ट करना पड़ेगा आपको.